Students, if you find this video useful for you, then please like, comment and share with your friends. Also subscribe my channel and press the bell icon to get notification of my upcoming videos. Hello students, welcome back to Science World. Student, in our last video we have discussed about the vegetative propagation and spore formation. These are the methods of asexual reproduction, and also discussed about the tissue culture. In this video we are going to start sexual reproduction. First we will see the importance of sexual reproduction, why it is needed, and then we will see sexual reproduction in plants. Okay, so we will start with sexual reproduction. What is sexual reproduction? So sexual reproduction is another type of reproduction in living organisms, and here in this reproduction, the production of offsprings or new individuals takes place by the fusion of two gametes. Now what are these two gametes? These two gametes are one male and another one is female. So fusion of these two gametes form a diploid zygote, and this zygote then develops into a mature organism. So this is the general idea of sexual reproduction. So sexual reproduction may be defined as the production of offsprings by the fusion of two gametes, that is male and female, to form a diploid zygote which develops into new mature organism. So here the fusion of gametes, ये male and female gamete का जो fusion होता है, it is known as fertilization. Okay, so in sexual reproduction, two gametes belonging to different sex fuse with each other to form a zygote, and this zygote leads to the development of new generation. Okay, now in most of the cases this formation of zygote involves meiosis. meiosis जो सेल डिवीजन का एक टाइप है, it is involved in this type of sexual reproduction. Okay, so why this meiosis is important here in sexual reproduction, that we will discuss in the importance of sexual mode of reproduction. Okay, so meiosis is important in sexual reproduction, so that the chromosome number becomes half in gametes. Now for example, if an organism is diploid, एक organism जो कि diploid है, that means उसकी जो somatic cells हैं, non reproductive cells, somatic cells are non reproductive cells. So these cells have 2n number of chromosome. इनमें 2n जो है chromosomes होते हैं. Okay, means two sets of chromosome. The meiosis in gamete formation results in production of haploid gametes. जो gametes form होते हैं वो होते हैं haploid. That means they contain only one set of chromosomes, that is n. Okay, so when this fertilization occurs, जब ये gametes जो कि haploid होते हैं, इनका fertilization जब होता है तो दो डिफरेंट जो सिंगल सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, दे फ्यूज एंड दे फॉर्म द जाइगोट. इनसे जो जाइगोट बनता है फ्यूजन के बाद, अगेन इट इज हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड, one set from parental side and another set of chromosome from maternal side. Okay, and this zygote then develops into an adult body of the organism. So यहाँ meiosis जो है, why it is important, because it produces the haploid cells. haploid जो gametes होते हैं, reproductive cells होते हैं, they are haploid. They have only one set of chromosomes, और ये gametes जब fuse होते हैं, they produce the diploid zygote, and which again becomes the new organism. So that is why meiosis is important here. Now let's see what is the importance or why sexual mode of reproduction is important. Why sexual mode of reproduction? Just now we have discussed about the meiosis, and that is also one of the reason. So we know that during the cell division, two new cells form from one cell. एक सेल से दो न्यू सेल्स यहाँ पर बनते हैं, जिसको हम डॉटर सेल्स कहते हैं, एंड इट इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए की कॉपिंग, और जो सेलुलर एपरेटस होते हैं, दूसरे सेलुलर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेलुलर एपरेटस, इनका भी कॉपिंग होता है.
एंड डीएनए कॉपिंग जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरिएशंस इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। हमने ये पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट वीडियो में हमने वेरिएशंस के बारे में डिस्कस किया था कि डीएनए कॉपिंग जो है वो वेरिएशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring the survival of the species. So here you can see there are two steps involved in the cell division, that is meiosis. So first, this is the parent cell, or we can say the cell which is going to divide, and here before cell division the duplication or we can say replication of this DNA takes place, that is chromosome number is doubled. Okay, so here now you can see the homologous chromosomes. What are homologous chromosomes? These are the pairs of chromosomes with same gene sequence. Pair of क्रोमोसोम आप देख सकते हो, 4 पेयर्स आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इनके जो जीन सीक्वेंस है वो भी सेम है, इनका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होता है। एंड इट कम्स फ्रॉम 2 पेरेंट्स, वन फ्रॉम पेरेंटल साइड एंड वन फ्रॉम मैटरनल साइड। ओके, तो दे बोथ पेयर अप ड्यूरिंग द meiosis here. Now these homologous chromosomes they are duplicated here, and here in meiosis 1 mitosis takes place. Mitosis means simply the division of both the cells, and both the cells here, these cells are having 2n number of chromosomes, means 2 sets of chromosomes. Here also 2n number of chromosomes. So this is the first step in meiosis, and in second step of meiosis what happens, these cells again divide to form 4 cells. So from these 2 cells we got 4 cells, and these are having n number of chromosomes, means single set of chromosome. Okay, so these cells are known as, these 4 cells are haploid cells because they have n number of chromosomes. And before we have seen these 2, these are the diploid cell. So here what happens, during this division also the crossing over takes place, crossing over of chromosomes. Here you can see the color of this so here during this cell division crossing over also takes place. You can see here the change in color of these chromosomes. So during this crossing over what happens, a part of any chromosome it gets detached and it gets attached to the another chromosome. एक क्रोमोसोम का एक छोटा सा पोर्शन जो है ब्रेक हो जाता है और वो दूसरे क्रोमोसोम को जाकर के अटैच हो जाता है। सो हियर यू कैन सी स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, दिस इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। एंड ये क्रॉसिंग ओवर जो होता है इसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स का कंपोजिशन होता है, आगे आने वाली जो सेल्स है, जो सेल्स इसमें से प्रोड्यूस होंगी उन सेल्स में थोड़ा सा क्रोमोसोम्स के कंपोजिशन में डिफरेंस आता है, स्लाइट चेंज इसमें आता है। सो दिस फ्यूजन ऑफ गैमेट्स रिजल्ट्स इनटू द वेरिएशंस, और इसी क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो है इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस क्रॉसिंग ओवर के बाद जो है यहाँ पर जो सेल्स हमें मिली है 4 सेल्स meiosis 2 में, दे आर हैप्लॉइड सेल्स एंड दीज आर द गैमेट्स। ओके, these are the gametes and they get fused and again after fusion they form a diploid cell जिसको हम कहते हैं zygote। और ये जो zygote होता है डिप्लॉइड होता है और इस तरह से वापस जो चांसेस होते हैं वेरिएशंस के वो बढ़ते हैं। तो हमने अभी देखा कि जो meiosis है उसकी वजह से जो चांसेस ऑफ वेरिएशंस के और प्रोडक्शन ऑफ मोर कॉम्पिटेबल जनरेशंस के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं as compared to the asexual reproduction. So this is one of the importance of sexual reproduction. Then another point regarding this sexual reproduction is during sexual reproduction new combinations of variants are produced. New combinations of variants are produced. They are produced. Now how it happens, see, the variations generated due to DNA copying during gamete formation moves on to the next generation. जो DNA copying होता है उसकी वजह से जो वेरिएशंस होते हैं गैमेट्स फॉर्मेशन में वो नेक्स्ट जनरेशन में जो है कैरी किए जाते हैं। नाउ दिस हैपन्स बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ DNA बिलोंगिंग टू द 2 डिफरेंट इंडिविजुअल, दैट इज मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं इसके कॉम्बिनेशन से वो वेरिएशंस आते हैं। अगेन अ न्यू वेरिएशन विल अपीयर ड्यूरिंग DNA कॉपिंग एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन इन दिस जनरेशन। अब इस जनरेशन का जो है
इसका जब DNA कॉपिंग होगा और गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो उसमें भी जो है वेरिएशंस आएंगे, बट इट हैज़ ऑलरेडी अक्यूमुलेटेड वेरिएशंस फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन के वेरिएशंस इसमें ऑलरेडी है। फिर से जब इनसे नया जो जनरेशन बनेगा उनमें भी नए वेरिएशंस आएंगे। सो दस वी कैन से दैट टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन हैव डिस्टिंक्ट पैटर्न्स, उनके जो बॉडी के डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे, डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। सिंस ऑल द डिफरेंट वेरिएशंस अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ एज्यूम्ड दैट दिस डू नॉट हैव एनी बैड इफेक्ट्स। तो जो भी डिस्टिंक्ट पैटर्न्स हमें इन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं उनकी वजह से कोई बैड इफेक्ट नहीं होता है, बल्कि इट इज़ हेल्पफुल फॉर द survival of that particular organism and its population. So combining the distinct variations from two or more individuals during sexual reproduction it creates new combinations of variants. तो इस तरह से एक नए कॉम्बिनेशन का जो जनरेशन है वो हमें मिलता है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में. ओके, सो दिस इज अनदर इम्पोर्टेंस. देन नेक्स्ट इज this asexual reproduction and sexual reproduction we are reading now. So because of sexual reproduction there is re-establishment of the number of chromosomes. क्या होता है उसमें? re-establishment of the number of chromosomes and DNA content. अब ये कैसे होता है? लेट्स रीड इट और लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ डायग्राम. Here you can see. So here you can see this is the first generation, and in first generation you can see here 2n number of chromosomes are there. Here also 2n number of chromosomes means 4 chromosomes are there. Okay, so we have just seen that each new generation has the combination of DNA copies from two pre-existing individuals. Okay, and it doubles the content in the next generation. Next generation में ये content double हो जाता है. Okay, so if there is no meiosis, each new generation will result in having twice the amount of DNA that the previous generation had. Here you can see if there is no meiosis, अगर meiosis नहीं होता है यहाँ पर तो same number of chromosomes जो है वो gametes में आ जाएंगे, है ना, 2n. Here you can see 2n number of chromosomes. Now there is no meiosis. Okay, so second generation जो होगा उसमें 4n हो जाएगा क्योंकि वो डबल हो जाते हैं, है ना. DNA content जो है it gets double in the cell division. So if the process continues for few generations like this, if there is no meiosis again, then again next generation or next gametes will have the 4n number of chromosomes, and after fusion of these gametes we will get third generation which is having 8n यानी कि 16 chromosomes उनमें होंगे. So DNA content will continue to increase by doubling in each sexual fusion. तो हर fusion के बाद जो है DNA content double हो जाएंगे. And if this process continues for few generations, soon there will be only DNA content on the earth and nothing else. Now what is the solution for this situation? अब इस solution का जो इस situation का जो solution है वो है meiosis. So as organisms become more complex, हमने देखा है कि उनका जो टिश्यूज़ का स्पेशलाइजेशन होता है वो भी बढ़ जाता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेस. सो इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स दे हैव स्पेशल lineages ऑफ सेल्स. मतलब वो जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है उनमें स्पेशल सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स उनको प्रोड्यूस करता है. ओके, एंड दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड नंबर ऑफ हैप्लॉइड सेल्स, यानी कि उनमें जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ DNA एज कंपेयर टू द नॉन रिप्रोडक्टिव सेल. जैसे सोमेटिक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं तो इन सेल्स में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जस्ट हाफ. ओके, और इन सेल्स को हम कहते हैं जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स. तो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में स्पेशल सेल्स ये प्रोड्यूस होती है उनके स्पेशलाइज्ड जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर. नाउ व्हाट हैपन्स हियर, दिस 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि 4 क्रोमोसोम्स जो होते हैं इस फर्स्ट जनरेशन में, आफ्टर मियोसिस यू विल सी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मीन्स हाफ ऑफ द पेरेंट्स. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि इनके फ्यूज़न के बाद हमें वापस से एक डिप्लॉयड सेल मिलता है जो कि 2n नंबर उसमें होता है क्रोमोसोम का इन सेकेंड जनरेशन. फिर सेकेंड जनरेशन में जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे दे विल हैव हैप्लॉयड सेल कंटेनिंग द n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड after fusion of these gametes we will get again diploid
जो सेल होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हमें मिलेगा हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो थर्ड जनरेशन हमें ये मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रीस्टैब्लिशमेंट होता है क्रोमोसोम नंबर्स का। सेम क्रोमोसोम नंबर आगे नहीं जाते हैं, हर बार उनको हाफ करके फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में आगे की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि व्हेन दिस जर्म सेल्स फ्रॉम टू इंडिविजुअल कंबाइन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल विच रिजल्ट्स इन द 2n number of chromosome, that is diploid cell. Okay, so formation of diploid zygote इससे होता है. So we can say that the sexual reproduction plays an important role in the variations and in the process of evolution also. So there are different things that are responsible for this. Just we have discussed about it. So one is meiosis, another one is DNA copying. Okay, so I think you have understood this concept of sexual reproduction now. Then we are going to read about the sexual reproduction in flowering plants. So we have seen that sexual reproduction जो होता है simple organisms में हो सकता है कि उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत सिंपल है, तो उनके जो सेक्स सेल्स होते हैं और जर्म सेल जिनको हम कहते हैं, दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे मे बी सिमिलर, ओके। तो जो सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेक्स सेल्स सेम होती हैं, हो सकती हैं, बट ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन वाले होते हैं उनमें जर्म सेल जो होती है स्पेशलाइज्ड होती है, दे हैव जर्म सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड सेल। अब इनमें से वन जर्म सेल जो होती है वो लार्ज होती है एंड इट कंटेन्स फूड स्टोर इनमें होता है, इस सेल को हम कहते हैं फीमेल जर्म सेल, ओके। एंड अनदर वन इज स्मॉलर, दूसरा जो सेल होता है इट इज स्मॉल एंड इट इज मोटाइल मीन्स इट कैन मूव, ओके। सो दिस मोटाइल जर्म सेल इट इज कॉल्ड मेल गैमेट, okay. So the germ cell containing the stored food is called the female gamete, while this small and motile cell is known as the male gamete. So this is generally we can see in the sexually producing organisms. Now we will see sexual reproduction in flowering plants. Sexual reproduction in flowering plants. Okay. So the reproductive parts of angiosperms, flowering plants, they are known as angiosperms, and these angiosperms have reproductive parts located in their flowers. Angiosperm जो plants होते हैं उनके flowers होते हैं, they are flower bearing plants and they have flowers, and in these flowers reproductive parts are located. Now a typical flower जो है it is consist of 4 whorls, and what are they? Let's see with the help of diagram. So let's see the structure of a flower. A typical flower consists of 4 whorls. 4 whorls. Now whorls क्या होता है? It is the arrangement of different parts of the flower in a circular manner. Okay, जब अगर आप फूल को देखोगे, फ्लावर को देखोगे, तो उसमें जो उसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि सेपल्स है, देन पेटल्स है, वो सर्कुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं, इसको हम कहते हैं whorl. Okay. So let's see which are the parts of these whorls. So a typical flower consists of sepals, then petals, stamen and pistil, or it is also known as a carpel. Okay. So let's read one by one. Sepals, first one is sepal. So sepals are very small leaf shaped green colored and outermost part of the flower. ये ग्रीन कलर के होते हैं, इसको आपने ऑब्जर्व किया होगा जब एक फ्लावर बर्ड के फॉर्म में होता है, जब वो बर्ड होता है तो इट इज़ कवर्ड विथ ग्रीन कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर. सो दीज आर द सेपल्स, एंड ये जो सेपल्स है टुगेदर दे आर नोन एज कैलिक्स. एक फ्लावर के जो सेपल्स होते हैं उनको हम कहते हैं एक साथ, उनको हम कहते हैं कैलिक्स. ओके. तो कैलिक्स जो है इट इज़ ग्रीन इन कलर एंड दे प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, एंड इट आल्सो सपोर्ट्स द पेटल्स, वो पेटल्स को सपोर्ट भी करते हैं. नाउ नेक्स्ट जो है इट इज़ पेटल. पेटल्स आर कलरफुल पार्ट्स. आप देख सकते हो, आपने अगर चाइना रोज का फ्लावर ऑब्जर्व किया है तो इट्स वेरी कलरफुल, डार्क कलर होता है, रेड कलर, एंड दीज आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर लाई इनसाइड द सेपल. ये सेपल्स के अंदर की तरफ होते हैं. ओके.
तो पेटल्स जो हैं एक फ्लावर की, उनको हम कलेक्टिवली कहते हैं कोरोला, दे आर नोन एज कोरोला। ओके, सो ये कोरोला जो है दे आर वेरी कलरफुल एंड दे आर हैविंग फ्रैग्रेंस ऑल्सो, उनमें खुशबू भी होती है। एंड व्हाट इज देयर फंक्शन? देयर फंक्शन इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स थ्रू देयर कलर्स एंड फ्रैग्रेंस। अपने कलर और फ्रैग्रेंस से वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं फॉर पॉलिनेशन। एंड दे आल्सो प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है फ्लावर का, वो है स्टैमेन। स्टैमेन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पार्ट एंड इट इज द मेल पार्ट ऑफ द flower. Okay, it is also known as androecium. There may be several stamens in a flower. एक से ज़्यादा stamens भी एक flower में हो सकते हैं. And a single stamen is made of 2 parts. एक single stamen जो होता है वो 2 parts का बना होता है, anther and the filament. Okay, anther and filament. Filament जो है it is a stalk-like structure. Filament एक stalk के जैसा structure होता है, और जो anther है वो bilobed structure होता है, छोटा सा, उस filament के ऊपर attach होता है यहाँ पर। ओके, ये जो एंथर है इट बियर्स 4 इनर चैम्बर्स, इसके 4 चैम्बर्स होते हैं अंदर। दे आर कॉल्ड द पोलन सेक्स, उनको हम पोलन सेक्स कहते हैं। एंड पोलन्स आर प्रेजेंट इन दिस सेक्स। नाउ पोलन जो है दे प्रोड्यूसेस मेल गैमेट्स विच रिमेन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ येलोइश पाउडर। अगर आपने किसी फ्लावर को हाथ से टच किया है तो आपने देखा होगा कि एक येलोइश कलर की पाउडर आपके हाथ में चिपक जाती है, तो वो जो पाउडर है इट इज पोलन ग्रेन्स। ओके, तो येलोइश कलर में होते हैं एंड दे आर द पोलन ग्रेन्स। तो ये जो पोलन्स है दे रिमेन इनसाइड द एंथर, वो एंथर के अंदर होते हैं। सो दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। देन वी हैव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज कार्पल और इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्टिल। सो इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम। इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर, वो फ्लावर के सेंटर में होता है। एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ये है स्टिग्मा, ये फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इट इज स्टाइल, एंड द ovary, basal part जो है it is ovary. So what is stigma? It is the part of the carpel and it may be sticky. ये terminal part होता है, ऊपर वाला part होता है इस carpel का, और ये sticky होता है because it is responsible for receiving male gamete. जो pollens होते हैं वो यहाँ पर आकर के चिपकते हैं, okay, during pollination. तो पॉलिनेशन के लिए ये स्टिकी होते हैं। देन स्टाइल जो है इट इज़ इलोंगेटेड ट्यूबुलर फॉर्म स्ट्रक्चर्स एंड इट कनेक्ट्स द स्टिग्मा टू द ओवरी। ये जो है स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करता है, दिस पार्ट। देन जो लास्ट पार्ट होता है बेसल पार्ट ओवरी, इट इज़ स्वोलन स्ट्रक्चर, स्वोलन होता है एंड द ओवरी बियर्स ओवल्स। इसके अंदर जो है ओव्यूल्स होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर ओव्यूल्स होते हैं एंड ईच ओव्यूल हैज़ अ एक सेल, हर ओव्यूल के अंदर एक सेल जो है वो होती है। ओके, सो दिस इज द कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। नाउ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स includes 3 steps, we can say. One is pollination, next one is fertilization, and the last one is post fertilization changes. Okay, so these are the 3 steps involved in the process of reproduction in plants: pollination, fertilization, and post fertilization changes, that is formation of seeds. So we will read about them one by one. So what is pollination? For reproduction in plants, the pollen needs to be transferred from the stamen to the stigma. रिप्रोडक्शन के लिए जो पोलन्स होते हैं, जो कि मेल गैमेट्स होते हैं उनके अंदर, वो ट्रांसफ़र होना ज़रूरी होता है स्टिग्मा के ऊपर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम और द अनदर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. इसको हम कहते हैं पॉलिनेशन. तो इट इज सिंपली द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. Pollination can be of 2 types: self pollination and cross pollination. In self pollination, the pollens of a flower is transferred to the stigma of the same flower. वो same flower पे transfer होता है. And it may be possible that the pollen get transferred from one flower to the another flower of the same plant. वो same plant के किसी दूसरे flower पे भी जो है transfer of pollen हो सकता है. So these 2 types or these 2 things are there.
सो दिस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है जिसमें एक ही प्लांट पर जो है ट्रांसफर ऑफ पोलन होता है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स के बीच में या एक ही प्लांट के एक फ्लावर पे ये ट्रांसफर ऑफ पोलन्स होता है। एंड दिस कैन बी कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन द बाइसेक्सुअल फ्लावर्स लाइक चाइना रोज एंड पी। These are the examples. Another method of pollination is cross pollination. Here in this process the pollens of a flower get transferred to the stigma of another flower of another plant of the same species. ये प्लांट जो है इसके जैसा ही है, सेम स्पेसीज का है, बट द प्लांट इज डिफरेंट, दूसरा प्लांट है लेकिन सेम स्पेसीज का। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ पोलन है फ्रॉम वन फ्लावर ऑफ दिस प्लांट टू द अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ओके, एंड दिस pollination you can see the transfer of pollens is achieved by the different agents like wind, ये wind के थ्रू भी होता है, हवा से होता है, या फिर water के थ्रू ये होता है। in aquatic plants water इसके लिए responsible होता है। some insects and other animals are also responsible for this pollination. Okay, so this is the first step in the process of reproduction in plants. Then second step is fertilization. So what happens in fertilization? The fusion of male and female gamete, that is pollen and egg cell, they together they fuse and they form a zygote. They form a zygote, and this process is called fertilization. So what is fertilization? It is the fusion of male and female gametes. So after pollination, the pollen that lands on the stigma of this flower, इस स्टिग्मा पे जो पोलन के यहाँ पर लैंड हुआ है, सो दिस पोलन हैज़ टू रीच टू द फीमेल जर्म सेल। यहाँ से इसको नीचे आना है फीमेल जर्म सेल के पास जो कि ओवरी के अंदर है ना, इट इज इनसाइड द ओवरी। एंड फॉर दिस अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब जो है वो यहाँ से ग्रो होती है, किससे? पोलन से। तो दिस पोलन स्टार्ट ग्रोइंग अ पोलन ट्यूब हियर एंड दिस पोलन ट्यूब रीचेज टू द ओवरी। ये पोलन ट्यूब जो है वो ओवरी तक जाती है। आफ्टर रीचिंग द ओवरी पोलन ट्यूब एंटर्स इन द ओवल। पोलन ट्यूब जो है वो ओवल के अंदर एंटर करती है एंड दिस थ्रू दिस पोलन ट्यूब दिस मेल जर्म सेल जिसको हम कहते हैं, दैट इज ट्रैवलिंग, इट ट्रैवल्स टू दिस पोलन ट्यूब and it enters into the oval. So during fertilization male gamete fuses with the egg cell and then zygote forms. तो zygote जो form होता है यहाँ पर वो होता है diploid. It is diploid having 2n number of chromosomes. ओके, और जो मेल जर्म सेल है और जो ओव्यूल है यहाँ पर अंदर, यहाँ पर जो फीमेल जर्म सेल है, दीज आर हैप्लॉइड सेल्स। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा? इनके फ्यूजन के बाद जो है डिप्लॉइड सेल बनता है जिसको हम कहते हैं जाइगोट। ओके, देन द लास्ट स्टेप इन दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, or we can say the seed formation. Okay, so what happens after fertilization? The zygote divides several times to form an embryo. zygote जो है वो embryo form करता है after several cell divisions in the ovule, ovule के अंदर. Okay, now this ovule develops a tough coat and gradually converted into a seed. ये embryo जो है उसके चारों ओर एक tough coat बनता है और वे ये बाद में जो है वो एक सीड बन जाता है। तो ओवल बिकम्स द सीड। नाउ द ओवरी, ओवरी का क्या होता है? ओवरी, ओवल का तो सीड बन गया। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स एंड इट फॉर्म्स द फ्रूट। ओवरी जो है वो फ्रूट फॉर्म करती। मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टैमेन, स्टाइल, स्टिग्मा दे मे श्रिवल एंड गेट ड्राई एंड फॉल ऑफ। हमने जनरली देखा है कि जो फ्रूट्स होते हैं जैसे ही फ्लावर जो है ड्राई हो जाता है और उसी जगह पर जो है फ्रूट ग्रो होता है। तो समटाइम्स वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट सम फ्रूट्स हैव सम ड्राई पार्ट्स ऑफ पेटल्स एंड फ्लावर्स, अनदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर, पेटल्स, सेपल जो है उस फ्रूट में ही अटैच होते हैं, ड्राई पार्ट। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है और जो फ्रूट ग्रो होने लगता है, बाकी के जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं और गिर जाते हैं। द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। फ्रूट के अंदर जो सीड है उसके अंदर क्या होता है? फ्यूचर प्लांट। मीन्स दिस सीड गेट्स जर्मिनेटेड एंड देन इट फॉर्म्स अ प्लांट। फ्यूचर प्लांट होता है इसके अंदर। ओके, सो दिस डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। तो इस तरह से पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के बाद के जो कुछ चेंजेस होते हैं, ये सारा प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का। नाउ
there are some advantages of seed formation in plants. So first one is seed provide a protective coat, means it gives protection. किसको protection देती है ये? It provides protection or it provides a protective coat so that the embryo, किसको? embryo जो develop होता है seed के अंदर, embryo can develop when it finds the favorable conditions. जब भी उस seed को favorable conditions available होंगी, just like soil, moisture and warmth, जब भी ये तीनों फेवरेबल कंडीशंस उस सीड को प्रोवाइड होंगी तो उस टाइम सीड जो है इट इज़ एबल टू ग्रो, उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो प्रॉपर वे में ग्रो होता है. सो सीड प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो बिफोर, मीन्स जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती है टू ग्रो और टू जर्मिनेट, तब तक उसको प्रोटेक्शन मिलता है सीड की वजह से. ओके, दिस एम्ब्रियो को. सो दिस इज़ वन एडवांटेज ऑफ सीड. देन नेक्स्ट इज seeds dispersed by wind or animals into new areas allow the species to grow into new areas and protects the species from becoming extinct. Now seeds dispersion सबने पढ़ा हुआ है, dispersal of seeds. dispersal of seed का मतलब होता है कि जो parent plant होता है, इस सपोज एक कोई plant है, उसकी जो seeds है वो कहीं दूर जा करके grow होती है. नाउ सीड अपने पेरेंट प्लांट से दूर जा करके जब डिस्पर्स होती है तो उसका क्या एडवांटेज है? तो इसका एडवांटेज ये है कि इसकी वजह से जो इस प्लांट के जो सीड्स हैं वो दूसरे एरिया में जा कर के ग्रो होंगे यहाँ पर, और इस वजह से क्या होगा कि स्पेसीज जो है एक्सटिंक्ट होने से बचेगा. डिस्पर्सल ऑफ सीड की वजह से जो है इस प्लांट का जो भी सीड्स है अलग अलग जगह पर जाकर ग्रो होंगे और इस तरह से ये जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ ग्रोइंग एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम. ओके, तो एक्सटिंक्शन से ये बचते हैं डिफरेंट प्लांट स्पीसीज. तो ये डिस्पर्शन जो होता है यानी कि सीड डिस्पर्सल जो है इट इज़ कैरिड बाय विंड और एनिमल्स. देन नेक्स्ट इज नंबर 3, सीड्स आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन. सीड जो है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है. किसको? एम्ब्रियो को. सीड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स और जिसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन टू द प्लांट व्हेन द एम्ब्रियो इज़ रेडी टू स्टार्ट ग्रोइंग. जब सीड जर्मिनेट होने को होती है ना, सीड जब जर्मिनेट होती है, जब उसमें से न्यू प्लांट जो है वो ग्रो होता है, तो उस टाइम ये जो सीड है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर्ड होता है. इट कंटेन्स फूड फॉर द बेबी प्लांट. बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए उसके अंदर फूड होता है. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ seed formation in the plants. Now next we will see one activity. One activity is there. So in this activity what you have to do, see page number 135, activity 8.7. What you have to do is you have to soak few seeds of Bengal gram, जिसको हम चना कहते हैं. चना के कुछ seeds आपको soak करने हैं overnight पानी में. Then drain the excess water and cover the seeds विथ वेट क्लॉथ एंड लीव देम फॉर अ डे. आपने मम्मी को स्प्राउट्स बनाते हुए देखा होगा, तो इसको रात भर हम पानी में भिगो के रखते हैं और उसके बाद उसके पानी को ड्रेन करके उसके ऊपर एक गीला सा कपड़ा अगर हम डाल के उसको रख दें एक दिन के लिए, तो वो सीड्स जो है वो ड्राई नहीं होती है और वो जर्मिनेट होती है ना. सो देन यू टेक बंगाल ग्राम, चना जिसको हम कहते हैं, वो फूला हुआ चना जो होता है उसको आपको देखना है जिसमें स्प्राउट आया हुआ है. ओके, नाउ सी द दैट चना जिसको हम ग्राम कहते हैं उसको आपको ऑब्जर्व करना है और उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है. ओके, नाउ हियर यू कैन सी द ग्राम सीड, बंगाल ग्राम सीड जिसको हम चना कहते हैं. जब ये जर्मिनेट होता है, हियर यू कैन सी 2 कोटिलेडॉन्स. ये 2 कोटिलेडॉन्स आप देख सकते हैं, दिस वन एंड दिस वन. दीज आर द कोटिलेडॉन्स ऑफ द सीड एंड they become distinguishable with the formation of radical and plumule. इन 2 कोटिलेडॉन्स के बीच में आप ये वाला पार्ट देख सकते हो. अगर आप उसको खोलते हो चने को, तो ये जो 2 पार्ट्स है, एक तो है प्लूम्यूल और दूसरा है रेडिकल. प्लूम्यूल फॉर्म करता है शूट और रूट फॉर्म करता है, रेडिकल फॉर्म करता है रूट. ओके, सो व्हाट हैपन्स ऑन सोकिंग इन वाटर अ सीड ब्रेक्स इन इट्स डॉर्मेंसी. डॉर्मेंसी के बारे में आपको मैंने बताया था कि डॉर्मेंसी मतलब जो इनएक्टिव स्टेट होता है सीड का जर्मिनेशन से पहले. तो soaking in water breaks the dormancy of the seed and it starts growing. A small white tip emerges out from the seed.
जिसको हम रेडिकल कहते हैं। तो सबसे पहले रेडिकल जो है वो बाहर आता है, वो ग्रो होता है इस सीड के अंदर। सो रेडिकल विल कम आउट, छोटा सा एक वाइट कलर का। रेडिकल लेटर ऑन डेवलप्स इनटू रूट। रेडिकल जो है यहाँ आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो है ये ग्रो हुआ है, तो रेडिकल बिकम्स द रूट ऑफ द प्लांट। देन आफ्टर फ्यू डेज इफ यू विल ऑब्जर्व, रेडिकल फॉर्मेशन के बाद की जो ग्रोथ है वो होती है ग्रोथ ऑफ प्लूमिल। तो एक वाइट स्ट्रक्चर और आप देख सकते हो यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर भी वहीं से आता है जहाँ दोनों सीड्स के कॉटिलेडॉन ज्वाइन होते हैं यहाँ पर, एंड वी कॉल दिस पार्ट प्लूमिल। जो प्लूमिल पार्ट होता है इट फॉर्म्स द फ्यूचर शूट और स्टेम ऑफ द प्लांट। ओके, तो ये ग्रीन कलर का स्टेम बन जाता है प्लूमिल पार्ट जो है। सो दिस पार्ट्स यू कैन ऑब्जर्व इन द सोक्ड सीड ऑफ any seed you can take मूंग, you can take चना, you can take ब्लैक ग्राम जिसको हम कहते हैं उड़द का। अगर आप सीड लेते हो तो ऐसे सीड्स आपको लेने हैं जिनमें 2 कॉटिलेडॉन्स होते हैं, मतलब डाइकोट सीड्स आपको लेनी है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्टिविटी आप घर पे भी करके देख सकते हो, एंड यू कैन ऑब्जर्व दिस पार्ट्स ऑफ द सीड। सो हियर कॉटिलेडॉन जो होता है इट प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग बेबी प्लांट। ये जो छोटा सा प्लांट ग्रो होता है इसके अंदर, इसके लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो कॉटिलेडॉन्स उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो हियर वी हैव फिनिश्ड द असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स और एंजियोस्पर्म्स हम कह सकते हैं इन प्लांट्स। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स. In our next video, we will discuss about the reproduction in human beings. So be with me in next video also. And till then, take care. Bye bye.